morning, dear students. It's class 5 Social Science, chapter 13 India's Neighbors, video part 2. In video part 1, you had read about neighboring countries of India and their location. Then you also read about the similarity of language between India and Pakistan. Now here we are going to read today about similarity of food between India and its neighboring countries. After watching this video, you will be able to learn about different food items which are eaten in India as well as in its neighboring countries. बेटा इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ऐसी कौन से फूड आइटम्स हैं जो कि इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज में सेम है और ऐसी कौन सी ड्रेसेस हैं जो कि इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज में सेम पाई जाती हैं. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग, लेट्स वॉच अ वीडियो. Our country and its neighbors. In this module, you will explore the neighboring countries of India. It is Know Your Neighbors Day at school. Neil and his classmates have set up an exhibition displaying the cultures and traditions of each of India's neighboring countries. All the students and teachers of Neil's school have learned so much at the exhibition. Let us take a look at what is on display in the exhibition. Our country, India, is located in South Asia. It is famous for its diverse cultures and traditions in the world. Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, China, Bhutan, and Nepal are its neighboring countries. Greetings from Pakistan, the land of the pure. Pakistan is located on the western side of India. It shares its borders with the Indian states of Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan and Gujarat. The capital of Pakistan is Islamabad. Like India, Pakistan is also a land of diverse landscape, which include mountains, deserts, plateaus and coastal plains. Pakistan is home to the famous Harappan site of Mohenjo-daro. It is also famous for the historic city of Takshila. Did you know that hockey is the national sport of Pakistan? Greetings from Sri Lanka, the pearl of the Indian Ocean. Sri Lanka is an island nation in the Indian Ocean. It is located off the southern coast of India. Colombo is both the capital and largest city of Sri Lanka. The climate of Sri Lanka can be described as tropical with distinct wet and dry seasons. In Sri Lanka, the Temple of the Tooth, which is located in the city of Kandy, is believed to house the tooth of Lord Buddha himself. Volleyball is the national sport of Sri Lanka. Greetings from Bangladesh, the land of rivers. Bangladesh is a riverine country that shares its borders with the Indian states of West Bengal, Mizoram, Meghalaya, Tripura and Assam. Dhaka is the capital of Bangladesh. Climate in Bangladesh is characterized by wide seasonal variations in rainfall, high temperature and humidity. There are different places to visit in Bangladesh. Some of these include historical monuments, beaches, forests and its wildlife. Did you know that about 700 rivers, including their tributaries, flow through this country? Greetings from Myanmar, the land of golden pagodas. Myanmar is situated in Southeast Asia. It shares its borders with the Indian states of Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram.
Naypyidaw is the capital of Myanmar. Pagodas are the major tourist attractions in Myanmar. The most famous among them are Shwedagon, Botatong, and Kottadong. Chinlon is the national sport of Myanmar. It is a ball game played without using hands. Did you know that one of the biggest books in the world is in the grounds of the Kottadong Pagoda in Myanmar? Greetings from China, the land of the Red Dragon. China shares its borders with the Indian states of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, and Arunachal Pradesh. It is the world's fourth largest country. Beijing is the capital of China. The famous Great Wall of China is one among the many tourist attractions in China. The Terracotta Army of Xi'an and the Forbidden City of Beijing are also popular among tourists. China also has the world's largest population. Chinese is the world's most widely spoken language. China is also home to giant pandas. Greetings from Bhutan, the land of the Thunder Dragon. Bhutan is located at the eastern end of the Himalayas. It shares its borders with the Indian states of West Bengal, Sikkim, Arunachal Pradesh, and Assam. Thimphu is the capital of Bhutan. It is one of the capital cities in the world that has no traffic lights. Bhutan is famous for its monasteries, forts, and scenic beauty. The national flower of Bhutan is the Himalayan blue poppy, which is a very rare flower. Takin is the national animal of Bhutan. It is a cross between a cow and a goat. So, dear students, the traditional Nepali meal consists of dal, bhat and तरकारी. जो पुराना नेपाली खाना है उसमें शामिल हैं दाल, भात और तरकारी. ऐसा ही खाना सिमिलर फूड इज सर्व्ड इन मैनी इंडियन हाउस होल्ड्स. ऐसा ही खाना इंडिया के बहुत से घरों में खाया जाता है. द ओनली डिफरेंस इज दैट नेपाली फूड इज मच लेस स्पाइसी दैन इंडियन फूड. कि जो नेपाली खाना होता है वो बड़ा कम मसालेदार होता है इंडिया के कंपैरेटिवली. यानी कि इंडियंस ज़्यादा मसाले खाते हैं. द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन फूड इज़ मोर एविडेंट इन साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल. कहते भारत के खाने का जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, वो ज़्यादा देखा जाता है नेपाल के साउथ वेस्ट एरिया में. The rest of Nepal is influenced by Tibetan and Chinese cuisines. Cuisines means खान पान. जो बाकी नेपाल है वहाँ पे प्रभाव पड़ता है तिब्बत और चाइना के खान पान का. डू यू नो, क्या आप जानते हैं नेपालीज डेलिकेसी मोमोज. नेपाली की जो खास डिश है मोमोज. मोमोज क्या होते हैं? यहाँ पे भी हम लोग मोमोज खाते हैं ना. वेज भी होते हैं, नॉन वेज भी होते हैं. लेकिन नेपाल में मोमो कहाँ से, कैसे के खाते हैं? फिल्ड विद मीट एंड वेजिटेबल्स. वो मीट और वेजिटेबल से फिल होते हैं और वही आजकल इंडिया में भी पॉपुलर है. द नॉन वेजिटेरियन क्यूजीन ऑफ इंडिया. जो नॉन वेज खाना इंडिया का है खान पान, पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी वो एक जैसा है. यानी कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में नॉन वेज खाना एक जैसा खाते हैं. द कबाब्स आर एन ऑल टाइम फेवरेट विद एवरीवन. कबाब जो है वो सबके ही फेवरेट होते हैं. डोसा जो कि एक साउथ इंडियन डिश है, फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ श्रीलंकन क्विजाइन. वो श्रीलंका के खाने का एक हिस्सा है क्योंकि
तो साउथ इंडिया के साथ ही नीचे श्रीलंका लगता है, तो साउथ इंडिया में डोसा खाते हैं, इसलिए श्रीलंका के खान पान में भी डोसा शामिल है। डू यू नो चाइनीज फूड इज वेरी पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया। चाइना का जो खाना है वो पूरे इंडिया में ही फेमस है। जैसे हम लोग नूडल्स वगैरह खाते हैं वो चाइनीज खाना है, बट इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम चाइनीज फूड दैट इज अवेलेबल इन चाइना। लेकिन चाइना में जैसे क्या टाइप मिलती है, जिस तरह का खाना मिलता है, वो थोड़े हमारे खाने से अलग है। नाउ कमिंग टू द सिमिलैरिटी ऑफ ड्रेस विद आवर नेबर्स, कि हमारी ड्रेसेस किस तरह से हमारे नेबर्स के साथ मिलती जुलती हैं। There is great similarity in dresses of both men and women that are worn in India and its neighboring countries. इंडिया और उसके पड़ोसी देशों में आदमी और औरतें जो ड्रेसेस डालती हैं उनमें बड़ी समानता पाई जाती है। साड़ी एंड सलवार कमीज आर ट्रेडिशनल ड्रेस बोथ इन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया में भी डालते हैं, पाकिस्तान में भी साड़ी भी और सलवार कमीज भी। साड़ी इज ऑल्सो वर्न इन बांग्लादेश एंड श्रीलंका। साड़ी बांग्लादेश और श्रीलंका में भी डालते हैं। However, the traditional style of wearing a sari is quite different in most countries. लेकिन साड़ी को पहनने का तरीका जो है वो अलग है अलग अलग कंट्रीज में। Do you know बांग्लादेशी men wear कुर्ता पजामा that is known as पंजाबी। अब बांग्लादेश के आदमी कुर्ता पजामा डालते हैं, पंजाबी ड्रेस मानी जाती है वो। द मेखला चादर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी कि असम में हम लोग मेखला चादर डालती हैं। दैट इज सिमिलर टू द ड्रेस ऑफ नेपाल, म्यांमार एंड चाइना। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार और चाइना लगते हैं, नेपाल लगता है, वहाँ पे भी वो डाली जाती है। इन म्यांमार में लौंगी, सरोंग, इंजी ब्लाउज डाले जाते हैं। ठीक है, ब्लाउज और लुंगी डाले जाते हैं। म्यांमार में सिमिलर ड्रेस ऑफ लुंगी ब्लाउज इज वर्न इन साउथ इंडिया एंड श्रीलंका। श्रीलंका और साउथ इंडिया में भी डाली जाती है म्यांमार जैसी ड्रेस। द ट्रेडिशनल ड्रेस वर्न इन लद्दाख एंड भूटान। लद्दाख और भूटान की जो पुरानी ड्रेस है वो हमारी ड्रेस हमफू से मिलती है। सॉरी, चाइना की जो हमफू ड्रेस है, ये देखिए चाइनीज ड्रेस है हमफू। इससे कौन सी ड्रेस मिलती है? लद्दाख की। लद्दाख जो कि इंडिया में है और भूटान में, भूटान दूसरी कंट्री है। द मैन इन बोथ इंडिया एंड नेपाल फेवर कुर्ता पजामा और शर्ट कोट विद पजामा। वो दोनों कंट्रीज में, इंडिया में भी और नेपाल में भी, कुर्ता पजामा डाला जाता है या शर्ट और कोट डाली जाती पजामे के साथ। मुस्लिम्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, मुस्लिम जो इंडिया में रहते हैं वो सलवार कमीज डालते हैं, जिसको हम पठानी सूट बोलते हैं, विच इज़ ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तानी मैन। पाकिस्तानी मैन की ड्रेस है वो। बट द मॉडर्न जनरेशन हैज़ रिमूव्ड ऑल डिफरेंसेस एंड हैज़ यूनिफॉर्मली अडॉप्टेड जीन्स एंड टी शर्ट्स। अब हम तो बात कर रहे थे ट्रेडिशनल ड्रेसेस की, लेकिन अगर हम मॉडर्न ज़माने की बात करें तो आधुनिक पीढ़ी ने, आजकल के ज़माने के लोगों ने तो सारे ही फ़र्क ख़त्म कर दिए हैं और सभी आजकल जीन्स टी शर्ट एक जैसी डालते हैं। द सिमिलैरिटी इन लैंग्वेज, फूड एंड ड्रेस दैट वी शेयर विद आवर नेबरिंग कंट्रीज। अब जो हमारी समानता लैंग्वेज की, फूड की, ड्रेस की, हमारे पड़ोसी देशों के साथ मिलती जुलती हम लैंग्वेज बोलते हैं, खाना खाते हैं, ड्रेस पहनते हैं, हाईलाइट आवर कल्चरल बॉन्ड्स। वो क्या दर्शाती है कि हमारा सांस्कृतिक रिश्ता है, बंधन है हमारे पड़ोसी देशों के साथ। दे एक्ट एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, वो हमें जोड़ने का काम करती है। ये जो हमारा कल्चरल रिश्ता है वो हमें जोड़ने का काम करता है, इवन इन द फेस ऑफ डिफरेंसेस। चाहे हमारे में कुछ डिफरेंसेस हों, चाहे हमारे पाकिस्तान और चाइना के साथ डिफरेंसेस पाए जाते हैं, बट इवन देन जब हमारा कल्चर सेम है तो वो हमें जोड़ने का काम करता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ फूड कैसे मिलता जुलता है और ड्रेसेस कैसे मिलती जुलती हैं।